ए युवा, अपनी ताकत की पहचान कर, तुझे तकदीर बदलना है हिंदुस्तान की। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। पाखे ना गाछ विशिंग यू मैम पाखे जा हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। Today we are gathered here to celebrate 74th Republic. Our chief guests have already arrived, so I request to our teachers and students to receive the chief guest and current towards the stage. Dear respected teachers, please current our chief guest. सावधान विश्राम सावधान जय हिंद सर। 74th रिपब्लिक डे के अवसर पे ओडिशा आदर्श विद्यालय आपको स्वागत करता है सर। स्लो मार्च। Now I'm requesting to our chief guest to hoist the flag and start this 74th Republic Day. Service. भारत माता की भारत। जय हिंद सर। ओडिशा आदर्श विद्यालय के 4वां साल के मेडिकल के लिए हाजिर है सर। हमारे कमांडर के अभी निरीक्षण करेंगे हमारे चीफ गेस्ट सारे हाउसेस का। उनके साथ उनको साथ देने के लिए उनके साथ है हमारे और टीचर्स।
guest. The Red House it depicts victory. The values given here. The students will have a confidence. And so after parade march, now I am requesting our chief guest, our principal sir, to give a motivational speech to our student on this 74th Republic Day. Please, sir. First of all, wish you all of you a happy 74th Republic Day as well as happy Basant Panchami to all of you. So dear student, every year we are celebrating this day. But as a student, you should know where we should celebrate and where we normally celebrate this day. It is a very special day for the all Indians. On this day actually, our constitution came to force in the year 1950. And you must have known all about this, that what is constitution. And dear students, I am not going to say too much thing because after me, our SSS sir will say in details, in vividly. But from the grassroots, what we are doing, that is most important. So, constitution means what? The rules and regulation through which the state, the nation is governed. And we are abide by that constitution. So from this school, that start from you. You should start that, and even you should follow the rule and regulation from the school. So I'm not going to teach here. Then I would like to hand over my mic to our assistant to conclude further. Thank you so much. Thank you, sir. Now I am requesting our assistant Amulya sir to say something on this occasion. Please, sir. Respected Principal Sir, respected all the teachers, teaching and non-teaching staff, and my dear students. Today is the 74th Republic Day, and on this occasion, I want to wish a very, very warm welcome to the school and wish you happy Saraswati Puja. As we know,
On this day, 26th of January, Constitution was executed by our country. The making of Constitution was a very difficult task. It took several time, 2 years, 11 months and 18 days. My great endeavor by our B.R. Ambedkar, who was the head of drafting committee, and other, they made Constitution. They adopted different provision from different countries, and it prepared on November 26, but after 2 months it was executed. And on this day, on that day, we celebrate Republic Day. Everyone, respected principal, teachers, and all my brothers and sisters. My name is Diwali Mazi, and first I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 74th January of our country. Republic Day is the national festival of our country. We should respect our 26 January. The President of India is of national flag in New Delhi. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Have a very gentle good morning to all honorable principal, respected teachers, and my loving brother and sister. Today is 26 January in every year, and today we celebrate this day as Republic Day, which is a very important day for an Indian. It is a historical day of the Indian Constitution. In 1950, India became sovereign democratic Republic Day. Indian Constitution was created by and adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. We celebrate this day because in this day India became active. In 26 January 1950, Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee of Constitution. At last, I would want to say I am proud for my motherland, the great India. Thank you very much. Good morning to everyone. I am Anya Agrawal from class 6 and today I am standing to speak a few lines about Republic Day. Republic Day is celebrated every year on 26th of January. It is the day when our constitution work was completely completed. It took exactly 2 years, 11 months and 18 days to complete this work. This work started on December 9, 1946 and it was fully completed on 26 November 1949. On 1950, our rules came to force. And this is the day, Republic Day, when our work was completed and our country was an independent, democratic and republican country. Our country came to force on this day, so we celebrate the Republic Day. On Republic Day, many programs go on TV, the President and the Prime Ministers, they host the flags at New Delhi and many programs go on in TV. At New Delhi, flags are hosted and many rallies also go on at several cities and several places on this day. The schools have parades and many functions on this day. Thank you. Have a nice day. हम अंगूठे काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित करते हैं। बचपन तक हम अक्सर अपना शौर्य को समर्पित करते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने, शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने। खेल जगत को हिला दिया है कोहली साइना नाम ने, इतिहास बदल के दिखा दिया है अपने चाचा कराम ने। जब तक खतरे नीति का, जब समूचे आसमान पर, फिर ये जात पात का धब्बा कैसा मेरे हिंदुस्तान पर, मेरे हिंदुस्तान पर। A very good morning to one and all present over here. Thank you for having me. My name is Krish Panilai from class 9 section B. और मैं आज आपके सामने इस गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। तो आज जैसे कि एक माँ के साथ दूसरी माँ का भी दिवस है, जैसे हमारी भारत माँ के साथ हमारी सरस्वती माँ का भी दिवस है, जैसे वो विद्या की देवी है और ये हमारी जननी है। इस वजह से
हमें ये फर्ज बनता है कि हम इस दिन को आज से अपने दिन के साथ एक नया बदलाव से शुरू करें, एक नए सोच से शुरू करें। जैसे कि पढ़ाई ना करने का मन करे तो अच्छे से पढ़ाई करें, इस दिन से शुरू करें, अच्छे से रिकॉल करें, रिवाइज करें, अच्छे से अपना एक एम बनाए ताकि हम अपने देश को आगे ले जा सकें। जिस वजह से माँ सरस्वती की कृपा से हम अपने देश को भी आगे ले जा सकते हैं। और जैसे कि आज 26 जनवरी है, 74वां गणतंत्र दिवस, तो आज ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे देश में चल रहे थे पिछले टाइम, बहुत पुराने टाइम से चल रहे थे, उस प्रॉब्लम को देखते हुए आगे की जनरेशन, हम सब यूथ जनरेशन आगे ये प्रॉब्लम फेस ना करे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। वो चाहते थे कि एक ऐसा भारत बने जिसमें कोई जात पात ना हो, सब एक जैसे हो, सबका हाथ एक साथ हो और वो पूरे भारत को एक ऊंचे आसमान पे लेके जाए। जैसे कि प्यार हो या जंग हो यहाँ होती है ईमान से, प्यार हो या जंग हो यहाँ होती है ईमान से, अगर प्यार ना हो अपनी जान से तो टकराना हिंदुस्तान से, तो टकराना हिंदुस्तान से। इस हिसाब से अगर ये हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि अगर हम देशवासी ही नहीं रहे, हम भारतवासी ही नहीं रहे, तो हिंदुस्तान कहाँ रहेगा? इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि आज से हम अपने जात पात को भूल जाए, सिर्फ एक ही जात हो, एक ही धर्म हो, वो है हिंदुस्तान, हिंदू का धर्म, बस और कुछ नहीं। क्योंकि और अगर एक बात और है कि हम यूथ जनरेशन है, यूथ जनरेशन अगर अपनी लाइफ में एक एम नहीं रखेंगे, एक एम्बिशन नहीं रखेंगे, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, इतिहास लिख देने का, तो ये पढ़ाई किस काम की? इसलिए हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको आज से बल्कि अभी से अपने जीवन में एक महान लक्ष्य रखना होगा। क्योंकि अगर एक महान लक्ष्य है तो वही हमारे देश की नींव रखेगी और वो हमारे देश को उन ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। क्योंकि एक महान सोच से ही एक महान व्यक्ति का निर्माण होता है। इसलिए जैसे कि आज हमारा देश मार्च तक पहुंच गया एक छोटे से रॉकेट की मदद से, तो क्यों नहीं हमारा दिमाग भी है और हम सब न्यू जनरेशन अगर ठान ले तो हमारे देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं, ये आप ही सोचिए। बस इतना ही कहूंगा, धन्यवाद, जय हिंद। Good morning to all respected principals, teachers and my dear loving brothers and sisters. As we all know that today we all have gathered here on the very special occasion of our nation, which is called Republic Day. Today we will celebrate 74th Republic Day, and the best day which we should please to preserve the real meaning of status, prestige of our country. Great heroes of our country have fulfilled their responsibility and giving us freedom and constitution to our country. Thank you. काम खत्म नहीं हुआ। एक देश चलाने के लिए एक संविधान चाहिए जो 1947 में नहीं था हमारे पास। उसे कई दिन पहले 1934 में से M.N. रॉय ने ये हमें प्रस्ताव दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और उनके हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान से हमारे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मेदार लिया। वो अलग अलग कंट्री को जाते हुए अलग अलग कंट्री से कुछ आइडिया ले और हमारे कंट्री, हमारा इंडिया का ये जो संविधान बनाने के लिए 2 years 11 months और 18 days टाइम लिए उन लोगों ने। रूसिया से जाके उन लोगों ने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज लाए, अमेरिका जाके उन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के आइडिया लाए, सुप्रीम कोर्ट के आइडिया लाए, ऐसे अलग अलग कंट्री जाके अलग अलग आइडिया लेके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन लोगों ने तैयार करके 26 नवंबर 1949 में तैयार कर दिया। लेकिन उसको लागू करने के लिए और 2 महीने एक्स्ट्रा लिए 26 जनवरी 1950, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। उस दिन हमारे भारत में रिपब्लिक हुआ। रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? रिपब्लिक मतलब एक ऐसा देश जहाँ के रूलर्स और जो हेड होते हैं, जैसे कि हमारा हेड है प्रेसिडेंट, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। इसीलिए हमारे कंट्री को कहा जाता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री का ऑफिशियल नेम इंडिया नहीं है, भारत नहीं है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
हमारा ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऐसे अलग अलग जितने भी रिपब्लिक कंट्री है उनका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ केन्या, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लाइक दिस। सो हमारे इंडिया रिपब्लिक हुआ 1950 को 26 जनवरी को। उस दिन से हमने उसको रिपब्लिक डे के हिसाब से मनाते हैं। हमारा संविधान जो हमारे संविधान मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने बनाए थे, उस संविधान सिर्फ उन टाइम के लिए नहीं थे, वो लोग आने वाले 100 या 200 साल के लिए नहीं थे। पूरा जितने भी जिंदगी है हमारे इंडिया के लिए आगे कैसे डेवलप करेगा इंडिया, उस हिसाब से उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे। और उस टाइम से ही उन लोगों को पता था, उस टाइम पे जो सिचुएशन था इंडिया का, उस टाइम पे ज़्यादातर ये जो कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, ये सारी चीज को लेके उस टाइम पे चल रहा था इंडिया में। इंडिया डिवीजन हुआ था उस टाइम पे 1947 में रिलीजन को लेके। तो ये इंडिया तो स्वाधीन हो गया, तो इस इंडिया को आगे कैसे एक अच्छा बुनियाद दिया जाए, इस इंडिया को कैसे अच्छे से आगे लिया जाए, उस हिसाब से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि आगे इंडिया डिवीजन ना हो। रिलीजन के आधार पे जो डिवीजन हुआ था 1947 में फिर से वो नहीं तोड़ा जाए, इसलिए उन लोगों ने उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तुझ पे